फिलहाल सीधे रुख करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। सुदीन कुलकर्णी उनके साथ मौजूद है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी कालिक पोती गई है विरोध में खुर्शीद महमूद कसूरी के सुदीन कुलकर्णी के चेहरे पर। The great city of Mumbai, the historic city of Mumbai, and especially to our office, the Observer Research Foundation, we thank you first of all for accepting our invitation to come to Mumbai, even though there were already indications that there were some forces wanting to stop you, and they had actually threatened the organizers of the Ghulam Ali concert and succeeded in getting that concert called off. In spite of this background, you agreed to come to Mumbai. We are most thankful to you, sir. Our original program was to have a media interaction organized for you at our office as a prelude to the main function for which you have come, the Let me hold it. release कुलकर्णी साहब थोड़ा नीचे 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 सर नीचे थोड़ा नीचे okay. So this is the main function, friends, which is going to happen this evening at 5:30 at Nehru Center. We had received threats from a certain organization, and I have no hesitation in taking the name of that organization, the Shiv Sena, which had threatened the Nehru Center that if they do not cancel the program, they would disrupt it in the typical Shiv Sena style. उन्होंने धमकी दी थी कि शिव सेना स्टाइल में हमारे प्रोग्राम को वो डिस्टर्ब करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का कार्यक्रम तो होकर ही रहेगा। आज जिस कारण के लिए हम यहां बैठे हुए हैं वो एक मीडिया इंटरेक्शन कसूरी साहब और मुंबई के पत्रकारों के बीच, तो आपके बीच मैं नहीं आना चाहूंगा। आप कृपया कसूरी साहब को सुनिए और आपके कुछ प्रश्न हो, सवाल हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। प्लीज लेट्स हैव अ वेरी प्रोडक्टिव interaction, the first interaction, media interaction between Honorable Kasuri Saab and the media, which I want to reiterate is in furtherance of the noble cause of peace between India and Pakistan. Thank you. थोड़ा सा उधर होंगे, थोड़ी सी उधर होंगे. Thank you. Thank you very much, Mr. Kulkarni. First of all, I'd like to express my unhappiness, sadness at what's been done to you, a thorough gentleman, a scholar, and a thinker. I've known him for many years, and I'm most upset at what I see. Why have I come to Mumbai? It's a city where my father did his law degree. It's a city where he was imprisoned at the age of 19 in the Quit India movement during the freedom struggle. I'd heard a lot about this city, and I want to pay a tribute to the city. It's a city which, through its film industry, has enabled people of South Asia to understand each other because they adopt a very simple language. Whether you call it Urdu, Hindustani, Hindi, whatever that language is, it's a unifying factor. It brings the people of South Asia together. So these are all the reasons why I wish to come to Mumbai. It's the commercial capital of India. It's a very, I would say, an inclusive city. And as a political worker, I recognize the right of people to protest. I have myself been to prison many times. I have faced police lathi charges. I have faced tear gas. I know what political opposition is,
But I've always understood that as long as it is peaceful, it's justified. It is inherent in the constitution of Pakistan, India, and of other great democracies that you have a right to protest. But what's happened to Mr. Kulkarni is, I think, beyond that legitimate right. Why have I come here? There's another reason. I have seen how quickly it is possible to change people's perceptions. The peace process started with the famous visit of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee to Islamabad, when the joint statement between Pakistan and India was issued. It was the joint statement of January 2004. After that, it was all the way, going forward. Mr. Vajpayee was followed by Dr. Manmohan Singh, and he, with great diligence, carried forward the peace process. And in fact, it was during his tenure that we were able to achieve so much that you will find in this book. I think it was the most productive peace process, starting from Mr. Vajpayee's period to the time that I left office and Dr. Manmohan Singh was still Prime Minister. It was the most productive peace process between the two countries since independence. As far as the perceptions of the people are concerned, I'd like to share with you how quickly they can be changed. The process, I said, started in 2004. I don't know, a couple of years later, whenever, there was a cricket match in Lahore. Matches, as you know, are substitutes for battlefields, particularly if they are between India and Pakistan. Only the other day, you saw what happened in a match between India and South Africa. But Pakistan and India have a special type of, they arouse a special type of fervor. But can you believe it, that India won in Lahore, and the young boys and men of Lahore clapped India, cheered India, and ran across the field with Pakistani and Indian flags. What does it tell you? Don't ever estimate the intelligence of the ordinary people. Once they are given a positive impetus, a positive leadership, a positive message, they are not inherently stupid. So I have great faith in the common man in Pakistan and India. And I want to share my story with the people of Mumbai. And I'm particularly grateful the way this book was received in India and the way it was launched. Former Prime Minister Manmohan Singh was there. If Mr. Vajpayee's health had been good, I would have invited him. But instead, he was very ably represented by Mr. Lal Krishna Advani, who's a great friend of Mr. Kulkarni. In fact, I invited Mr. Lal Krishna Advani to Islamabad, and he came with him. And it was during that visit that Katas Raj temple was restored. And we used that opportunity, it's a historic temple, and we used that opportunity for Mr. Advani to inaugurate that temple. And therefore, I have many reasons to be here, and I'm open to any questions that you may have. Before you begin, friends, we are very happy to have with us Shri Dilip Patgaonkar, one of the panelists this evening. Dilip ji, dhanyawad. A very warm welcome to you to your Observer Research Foundation. नाही, मी काय म्हणतो, सकाळच्या घटनाक्रमाबद्दल आपण नंतर बोलूया. मी आहे इथे. हा जो कार्यक्रम आहे, कसुरी साहेब पहिल्यांदा आलेले आहेत, त्यांच्याबरोबर तुम्ही संवाद साधा आणि नंतर आपण बोलूच. Yes. So are you concerned about the evening program, and is that going to go? Well, obviously I'm concerned about what's happened to him, but that the overwhelming majority of people in Pakistan, and there have been survey after survey, who wish to have good relations with India. And what is the proof? India has never been an election issue in Pakistan, at least not in the last 3 general elections. So I can say conclusively that the ordinary people of Pakistan wish to have good relations with India, and on the basis of my experience, I can say, which I said in my remarks earlier, that do not underestimate the common sense of the people of Pakistan and India. If you are able to inform them rather than disinform them, people will change their minds. Yeah, मेरा मुंबई आने का एक मकसद था, और जिस संदेश यानी पैगाम
पैगाम ये है कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि पाकिस्तान और भारत, मैंने अपनी किताब में लिखा है, 9 मरतबा या जंग कर चुके हैं, जंग के करीब पहुंच चुके हैं, जंग के दहाने पे आ चुके हैं। और फिर मैंने उसमें ये बताया, ऐसे मुल्क जब इनको पॉजिटिव लीडरशिप मिले, जब आवाम को एक मुस्बत पॉजिटिव पैगाम दिया जाए, तो कितनी जल्दी हालात बदल जाते हैं। और 2004 में जनाब वाजपेयी तशरीफ लाए इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद डिक्लेरेशन हुआ, जॉइंट स्टेटमेंट हुआ पाकिस्तान और इंडिया का। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब वजीर आजम बने, जब वो कांग्रेस की पार्टी के हेड थे और इलेक्शन कांग्रेस जीत गई। और मैंने अपनी किताब में डिस्क्राइब किया है, पहले हमें शक था, हमें अफसोस, हम तो चाहते थे बीजेपी जीते, क्योंकि हमने बीजेपी के साथ प्रोसेस शुरू किया था। हमें यह डर था कि कांग्रेस पार्टी शायद उसको ओन नहीं करेगी। हमारे पाकिस्तान इंडिया में बदकिस्मती से होता ही है कि कोई पार्टीज ऑपोजिशन में कुछ करती हैं और गवर्नमेंट में कुछ। तो मुझे ये डर था कि इनके साथ तो मैं बात कर चुका हूं। ब्रजेश मिश्रा साहब ने मुझे लाहौर में कहा था कि 6 महीने में मसला कश्मीर हल करेंगे। भाई 6 महीने में कैसे करेंगे? आपको पता था कि पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, हमें पता था कि हिंदुस्तान की क्या पोजीशन है। ब्रजेश मिश्रा एक एक्सपीरियंस्ड आदमी थे, एक एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट थे, वो कुछ सोच समझ के ही कह रहे थे ना 6 महीने। और ये उस वक्त उन्होंने कहा था जब एक बैक चैनल शुरू भी नहीं हुआ था। वो मुझे लाहौर में मिले, बर्लिन में मिले, दिल्ली में मिले। फिर दिल्ली में जब वो नहीं रहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और मैं फॉरेन मिनिस्टर था, तो मिश्रा साहब ने मुझे ये खुद कहा, इससे आपको पता लगेगा कि उस वक्त की बीजेपी की लीडरशिप की क्या सोच थी। उन्होंने कहा कसूरी साहब ये सारे मसले हल होंगे, और सियाचिन पे, क्योंकि हमारा एतराज था कि क्यों हिंदुस्तान की फौज सियाचिन आई है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा सियाचिन से जो हमारी फौजें नीचे उतरेंगी तो एक पॉजिटिव सिग्नल पाकिस्तान आर्मी को भी जाएगा और दोनों फौजों के दरमियान जो दुश्मनी है वो कम होगी। मैंने उनकी बात से एग्री किया। उसके बाद मनमोहन सिंह साहब आए, उनके नीचे डिक्सेट साहब थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यानी ये कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई। उन्होंने भी मुझे प्राइवेट, जब पहली दिल्ली की विजिट थी, उन्होंने कहा कसूरी साहब लेट्स थिंक ऑन कश्मीर आउट ऑफ द बॉक्स। तो मुझे क्या समझ आया कि जो बीजेपी सोच रही थी वही कांग्रेस सोच रही है। आउट ऑफ द बॉक्स का तो ये होता है ना कि जो आपकी एंट्रेंच पोजीशंस हैं आप वहां से हटें, जो फिक्स्ड पोजीशंस हैं वहां से हटें, जो हार्ड पोजीशंस हैं वहां से हटें और कोई ऐसा रास्ता ढूंढे। हमारे लिए यही चैलेंज था कि एक ऐसा हल ढूंढें जो कश्मीरी भी जिस पे राजी हों, उनकी एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता हो, और पाकिस्तान और इंडिया दोनों उसको मान जाएं। देखने में नामुमकिन था, हमारी ऑपोजिट पोजीशंस थी, जंगे कर चुके थे, 1 मिलियन सोल्जर्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिगेस्ट मोबिलाइजेशन आमने सामने आ चुके थे। क्या हुआ 3 साल में, सिर्फ 3 साल में हालात ऐसे बदले कि हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम जब लाहौर में जीती, और क्रिकेट के मैच पाकिस्तान इंडिया के छोड़े, साउथ अफ्रीका और इंडिया का आपने देख लिया कैसा मैच हुआ था अगले दिन। पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म होता है, इंडिया जीता। लाहौर में कोई सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं हुई, मेरे हिंदुस्तानी दोस्त थे वो निकल नहीं रहे थे। वो मैंने कहा तुम घबरा के देखो, ग्राउंड में देखो क्या हो रहा है। वो हैरान हो गए कि ग्राउंड में न सिर्फ के इंडियन टीम के लिए तालियां बज रही थी, पाकिस्तान और भारत के झंडे लेके नौजवान लाहौर के स्ट्रीट में ग्राउंड में भाग रहे थे। इसका क्या मतलब हुआ कि लोग बेवकूफ नहीं है। डोंट अंडर एस्टिमेट देयर इंटेलिजेंस। लोग आसानी से समझते हैं, नेता उनको सही लीडरशिप दे तो वो सही रास्ते पे आ जाएंगे, और भड़काना चाहे तो भड़क भी जाएंगे। तो मैं वो शेयर करना चाहता हूं एक्सपीरियंसेस जो मैंने दिल्ली में किए, फिर कराची में किए, कल शाम को चंडीगढ़ में किए, वो CRRID वहां है। तो मेरा मकसद ये जितने छोटे अरसे में मैं जितनी जगह पैगाम पहुंचा सकूं, क्योंकि मैंने काम किया है भारत और पाकिस्तान को करीब लाने के लिए, सिर्फ उस वक्त नहीं जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था, बल्कि उससे बहुत पहले जब गुजराल साहब ने और मैंने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक दरख्त लगाया था पाकिस्तान और इंडिया के अमन के लिए। वो तो बड़े मेरे बुजुर्ग थे, मेरे वालिद के दोस्त थे गुजराल साहब, लेकिन उन्होंने मुझे, उनकी शफकत थी कि हमने इकट्ठा लगाया था। मुझे उम्मीद है वो दरख्त बहुत बड़ा हो गया होगा। तो मैं ये समझता हूं कि ये मुमकिन है कि दोनों मुल्कों में मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव की जाए, लेकिन उसके लिए कोई तरीका तो हो।
उसके लिए मुझे 4 साल मेहनत करनी पड़ी। कोई आसान काम नहीं था। और ये को मैंने ऐसे नहीं लिख दिया, को जो होता है ना कि अखबार का मजमून, हर चीज की रेफरेंस है, हर चीज की सोर्स है। क्यों मेहनत की? मैं चाहता था कि जब कभी हुकूमतें अपनी पॉलिसी बदलें, चाहे ये हुकूमत हो, कोई और हुकूमत हो, पाकिस्तान या इंडिया की, या यही मेरी दुआ है यही हुकूमतें हो पाकिस्तान इंडिया की, तो उनको पता हो कि कहां से शुरू करना है। ये मकसद था इस किताब को लेकर। आज ये जो कुछ भी हुआ है भारत में हुआ, अगर यही इवेंट अगर आप पाकिस्तान में रखते हो और अगर तालिबान की तरफ से आपको धमकी आती तो क्या आप इवेंट करते हैं? तालिबान का जो हशर हो रहा है ना, मुझसे पूछे ना, जो हशर हो रहा है ना, पूछे ना, जो अंग्रेजों ने नहीं किया था वो हो रहा है। पूरा नॉर्थ वजीरिस्तान, पहले साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान खाली कराया गया। फिर एक वैली थी शवाल की जिसमें जंगल है, हैंड टू हैंड बैटल हो रही है तालिबान के साथ। तो देखिए बात ये, रियासत जो है ना, स्टेट की अपनी पावर होनी चाहिए। स्टेट अपनी पावर, पाकिस्तान में हमने गलती रियलाइज की कि स्टेट अपनी पावर अगर एब्डिकेट करे तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो आप ये मुझे पूछ रहे हैं, देखिए स्टेट का ये काम है कि अगर कोई कानूनी का, हाँ मैं अगर गैर कानूनी काम कर रहा हूं तो मुझे इजाजत ही नहीं मिलनी चाहिए ये आने की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का राइट है, बैन कर दें, मत आए, मुझे इंडिया का वीजा ही ना दें। अगर मैं कोई कानूनी काम करने आ रहा हूं तो उसमें किस लिए इंडिया के बहुत से लोग आते हैं पाकिस्तान में, किसी को बैन तो नहीं किया जाता। आपके म्यूजिशियंस भी आते हैं, बड़े बड़े म्यूजिशियंस आते हैं। तो मैं इसलिए समझता हूं कि जो रवाबित है, कांटेक्ट है आम लोगों के दरमियान, वो ही जमानत इस बात की है कि स्टेट टू स्टेट रिलेशन जो है बेहतर होंगे। अगर आम लोगों के ताल्लुकात जो हैं वो खत्म हो जाएं तो तबाही आ जाएगी। और मैं आपको बताता हूं, मेरा सजेशन है, जो इतना काम मैंने किया, मुझे तजुर्बा है, ये हालात फिर बदल सकते हैं। अगर दोनों बजाय ये कि आप मीडिया के सामने बातें करें, बैक चैनल नेगोशिएटर्स अपॉइंट कर दें, तो आप देखेंगे 2 साल में कितनी तब्दीली आएगी। बिल्कुल हो सकती है। और मैं अपना एंथुसियाज्म, अपनी ऑप्टिमिज्म शेयर करना चाहता हूं मुंबई के लोगों में, क्योंकि मेरे वालिद ने यहाँ कई साल गुजारे हैं, यहीं तालीम हासिल की, लॉ की, यहीं जेल में गए क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो मुझे खुशी है कि मैं शहर में वापस आया हूं। एक मिनट जी सॉरी, शाम को डिसरप्शन हो सकता है। देखिए अगर शाम, क्या आपको डर लग रहा है? और देखिए दूसरा ये पूछना है, उद्धव ठाकरे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, उनसे आपको क्या कहना है? देखिए मेरी बात यह है कि मैंने तो ऑलरेडी कहा है, मेरा ये कहना है कि हर बंदे का राइट है प्रोटेस्ट करना, वो प्रोटेस्ट करे कि, और वो कहे कि मुझे नहीं आना चाहिए, उनका राइट है, ये जमहूरी राइट है। लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए, जहां तक डर का ताल्लुक है, हम अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। तो मैं ये समझता हूं कि मैं एक सही काम कर रहा हूं। डरता तो मैं जेलों में ना जाता, डरता तो मैं पुलिस के डंडे ना खाता, डरता तो मैं आंसू गैस ना झेलता। और ये मैंने सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर बनने से पहले नहीं, मैंने पुलिस की टेयर गैस का फैसला का मुकाबला फॉरेन मिनिस्टर के होने के बाद भी किया है। तो मैं यहां लड़ने नहीं आया, मैं एक अमन का पैगाम देने आया हूं। और हां, राइट इनका है, इन्होंने मुझे बुलाया, ये कैंसिल करते हैं कर दे, लेकिन मैंने इनको लेट डाउन नहीं करना। इन्होंने मुझे कहा, मुझे लोगों ने कहा दिल्ली में मत जाए, मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा भाई मैं आऊं, इन्होंने कहा जी आप जरूर आए, मैं इनको लेट डाउन नहीं करूंगा। हबीब जालिब साहब पाकिस्तान की जेलों में बैठ करके लता दीदी के लिए हबीब जालिब साहब पाकिस्तान में लता दीदी के लिए नज़में लिखते हैं, और जितने भी हुक्मरान आते हैं सबने तकरीबन उनको जेल में रखा। आप हिंदुस्तान आते हैं, सुधींद्र जी को जो भी अतिवादी है वो इस तरह से मुख पे काली को बोलते हैं, गालियां देते हैं। आप चूंकि निजामों के साथ भी आपने काम किया, आप रहे हैं, आप हुक्मरान रहे हैं, आपको लगता है कि लोगों में आपस में मेलजोल बढ़ाने की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन शायद सरकारें ही सिर्फ अपने पॉलिटिकल, मैंने तो आओ कहा है, नेताओं के हाथ में है, लीडर्स के हाथ में है, कायदीन के हाथ में है। अगर कायदीन चाहें तो इतनी तेजी से नैरेटिव बदलते हैं। मैंने पूरी ये कोशिश की, तजुर्बा, मैं चुप नहीं होता था, 3 साल मैं लगा रहा, तरक्की हो रही है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के कई लोग नाराज हो गए, इंडिया की गवर्नमेंट के भी नाराज हो गए,
कह लगे हम बोलते क्यों रहते हो? मैं कहा बोलता इसलिए हूं कि 70 साल से कहा जा रहा है कि हालात बेहतर नहीं होंगे, तो लोगों को ऑप्टिमिज्म देना है कि हालात बेहतर हो सकते हैं। और इसलिए आपकी बात ठीक है, हबीब जालिब ने मेरे वालिद के करीब तरीन दोस्त थे, फैज अहमद फैज, वो तस्वीर लगी है, मेरे वालिद के करीब तरीन दोस्त थे, इस किताब में जिक्र है। और जालिब साहब ने एक किताब सरे मक्तल मेरे वालिद को डेडिकेट की हुई है, बिकॉज ही वॉज हिज माय फादर। तो खुर्शीद महमूद कसूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे, सुदीन कुलकर्णी के साथ मौजूद हैं कि मैं शांति का संदेश लेकर आया हूं, ये कहा खुर्शीद महमूद कसूरी ने। और साथ ही ये भी कहा कि नेता अगर चाहें तो भारत और पाकिस्तान के बीच शांति हो सकती है और लोगों को ये संदेश दिया जाए तो वो समझते हैं, और अगर लोग चाहें तो लोगों को आसानी से भड़काया भी जा सकता है।